तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे ले चलते हैं। First, that the lockdown was announced by the Prime Minister in the intervening night of 24th and 25th, which is Tuesday, Wednesday night, saying that the lockdown commences from 0000 hours of Wednesday 25th, and the lockdown has been enforced from then. The government has been working so that those affected directly, and particularly the poor, the migrant workers, the women, the disadvantaged of the society, since the lockdown commenced, will have to be reached out with tangible help and assistance. It's only 36 hours since the lockdown has been imposed. And therefore now we have come with a package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor, and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. So I will detail that before you as to what are the ways in which this will benefit. We are looking at both cash transfer as one set of measures, and another set of measures will be food security related. We do not want anyone to remain hungry. So we will be giving enough to take care of their food, grains requirement, protein requirement in terms of pulses. On the other hand, they should also not remain without money in hand. So several measures through DBT are being taken so that money reaches them, so that they can have money in their hands. But before all this, I wish to start with a great sense of gratitude for all those frontline warriors who are fighting against coronavirus. It is for them that we want to attend to first, not forgetting the risks that they are putting themselves to in dealing with patients affected by coronavirus. They could be ASHA workers, they could be medical sanitary workers in government hospitals, they could be paramedics, they could be nurses, they could be doctors. In fact, some of them are being referred to gods in white costume. That is the extent to which people today have really started worrying about those who are doing a completely human service and making sure that no coronavirus patient will suffer. For them, we are providing an insurance cover so that in the 3 months that they are exposing themselves to this, hopefully by then it will be contained, the virus. We shall be providing 50 lakhs per person as medical insurance cover. For those warriors, the sanitation workers in government hospitals, the ASHA workers, and all of them, paramedics, nurses, all of them, doctors inclusive, will be given 50 lakhs per person as medical insurance cover in case they need it. So this will be the first which I want to announce, so that all those who are putting themselves to risks and not even worrying about their personal health considerations, they are attending to coronavirus people. So
First, I can ask this part be explained by Shri Anurag Thakur in Hindi. धन्यवाद। 36 घंटों के बाद एक बार फिर आप सबके बीच में जो पहले राहत दी गई कंप्लायंस को लेकर देश भर के छोटे, मध्यम और अलग व्यापारियों के लिए कंप्लायंस की राहत दी गई। उसके बाद अब देश के रहने वाले मजदूर हो, गरीब हो, ऐसे लोग जिनको आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा था कि उनकी सरकार गरीब के लिए, मजदूर के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए है, और आज के समय जब ये संकट की घड़ी में एक युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां पर सबसे बड़ा प्रभाव अगर गरीब वर्ग पर देखने के लिए मिलता है तो उसको राहत कैसे मिल पाए, चाहे वो अन्न की राहत हो या धन की राहत हो। और अन्न और धन इन दोनों को ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक रूप बनाकर आप सबके सामने आज पेश करने आए हैं। पहले तो है कि इस जंग को लड़ने के लिए जो हमारे योद्धा हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के, वो अपनी जान पर खेलकर भी देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यहां तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सब के लिए आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंटलाइन हमारे जो ये योद्धा हैं, इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे, और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है। और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। और हमारा मानना है कि देश भर के ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, जहां पूरे देश ने कुछ दिन पहले शाम को उनका आभार प्रकट किया था, आज सरकार ने अपनी ओर से कदम दूसरा रखा है ताकि उनके बारे में भी विचार किया जा सके। I now go to speaking about the two different silos in which I would like to present the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. One is on the food related, and the other, as I said, is on direct benefit transfer. The first one is the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, in which 80 crore poor people, which is 2/3 of our population, and there making sure that not one garib remains without food. We have now come to say that everyone, each one will get, as per the existing thing, 5 kg of rice or 5 kg of wheat is given to them per month. We are saying over and above that, 5 kgs each month for the next 3 months, whichever they take of wheat or rice, in addition to the 5 kgs they already get, will be given for free. So, per person 5 kg rice or per person 5 kg wheat, where they get already, we shall give another 5 kg for free, and that we shall give for the next 3 months. Besides, we also shall give 1 kg of pulse, whichever pulse is regionally, as it is, people prefer some pulse in some region according to regional preferences. Some areas prefer tuar, some other prefer urad, some other prefer moong. For each one household,
1 kg of the preferred pulse will also be given, dal will also be given. So 5 kg per person for the next 3 months, additional, free, over and above what they get already, and for every household 1 kg of the choice of pulse in that, usually given in that area, will be given, so that no garib remains without food in his hand. And this is very clearly for the next 3 months. It can be taken as in 2 installments. They can come and take it in 1 installment first, and then they can take the next whenever next time they want it. But over and above what they get, we now give 5 kg in addition to what they get of the cereal, and 1 kg per household, the pulses per household of the region specific choice of dal. That will be given for the next 3 months. जैसा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बात कही गई, ये लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ का होगा, और इसमें अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी गरीब इस कारण से परेशान ना हो कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त गेहूं, चावल या दाल ना हो। तो उसके लिए पहला कदम जो उठाया गया है वो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल ये लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा, और इसमें इनको 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं देना है। ये अतिरिक्त लाभ इनको दिया गया है। ऐसे 80 करोड़ लाभार्थी जिनको 5 किलो गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक ये लगातार मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा जो उनको मिलता है उससे ज्यादा, और ये जो पीडीएस के सिस्टम के माध्यम से मिलता है उसके अलग से ये देने हैं। और इसके अलावा जो दाल इनको मिले तो 1 किलो दाल का प्रावधान भी परिवार के लिए किया गया है, और ये भी अगले 3 महीनों तक लगातार मिलती रहेगी। ये भी अपने क्षेत्र के अनुसार जिस तरह की दाल वो चाहते हैं वो उपलब्ध करवाने का सरकार का प्रयास रहेगा, ताकि उनकी मांग के अनुसार ही वो उनको मिल सके। तो गेहूं चावल के साथ साथ दाल भी मिलेगी, और ये 1,70,000 करोड़ के जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज है उसका हिस्से का एक पार्ट ये भी है। Now I move over to the cash transfers. Just for your convenience, under the cash transfer, which is largely based on DBT, there are 8 specific announcements being made. And for your benefit, in the sense so that it is easy for you to notice, which are the sections we are touching. We are touching the farmer. 1, I'll tell you the details. We are touching the Manrega, which is the second. Third will be widows, poor pensioners, and poor Divyang. That will be my third. Then we will be talking about the Jan Dhan Yojana related women who have Jan Dhan Yojana accounts. Then we are talking of, together with that, I like to also talk about women and householders who receive benefits under the Ujjwala scheme. So that will be getting covered. You are also going to be having something said for the self-help group women who particularly are dealing with National Rural Livelihood Missions, Deen Dayal Upadhyaya Livelihood Mission. So women in the SHG groups. Then you're talking about organized sector workers who are essentially through the EPFO. So I'll be telling something for them. Then we'll also be talking about construction workers, and lastly we will be talking something about the district mineral fund also. So I go to the first one, farmers. Farmers, you know, they receive
6,000 rupees annually from the PM Kisan Yojana, Kisan Samman Nidhi, through which they get their annual 6,000 rupees. We will now be giving the first installment of that as a front-loaded matter, so that even at the beginning of the year, they will get 2,000 rupees. This will benefit immediately 8.69 crore farmers, 8.69 crore farmers will get immediate benefit out of this. जहां मैंने पहले प्रधानमंत्री अन्न योजना की बात कही, अब मैं अन्नदाता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के 130 करोड़ लोगों के पेट भरने के लिए अन्नदाता दिन रात पसीना बहाते हैं और उनको इस कठिन समय में परेशानी ना हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अप्रैल में पहले ही हफ्ते में, यानी कि आज से कुछ दिनों में, उनके खाते में 2,000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी और ये लगभग 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को 2,000 रुपये की किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में उनके खाते में डाल दी जाएगी, ताकि अन्नदाता को सम्मान मिल सके और ये पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। The next one is about Manrega. We announced a wage increase in Manrega. This will benefit 5 crore families, and the wage rate being increased will result in 2,000 rupees per worker. So 182 rupees is being increased to 202, and as a result we expect 2,000 rupees per worker will be the additional income he would get, and this will benefit 5 crore families. Of course, in this lockdown period and post that, even for field activities, the local district commissioners are empowered to exempt for agricultural work or something, depending on how they play it, with social distancing norms being respected. Where there is work, they can always do it. But matter of fact, this increase is now being given, and this shall continue. अन्नदाता के बाद मजदूरी पर आना चाहूँगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनको लाभ कैसे मिले, इनके लिए दिहाड़ी भी बढ़ाकर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है, और लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे जो अपने परिवारों को, लगभग 20 करोड़ लोगों के लिए वो मजदूरी करके कुछ ना कुछ करते हैं, उन 5 करोड़ लोगों के लिए जब ये दिहाड़ी बढ़ेगी तो उसका लाभ भी उनको मिलेगा और लगभग 2,000 रुपये का उनकी आय में वृद्धि होगी। The next category is old-aged people who are over 60 years of age, widows, and also the disabled, that is Divyang. We are giving them an ex gratia amount, which is a one-time amount of 1,000 rupees, and this shall be given in 2 installments over the next 3 months. And this is an ex gratia one time, and this is expected to benefit 3 crore senior citizens, poor senior citizens, 3 crores in total, poor senior citizens, poor widows, and poor among the Divyang and disabled. जिस तरह से मैंने मनरेगा के बारे में अभी आपसे कहा, अब एक और गरीब श्रेणी में वृद्ध भी आते हैं, विधवा भी आती हैं और दिव्यांग भी आते हैं। इनको इस कठिन समय में दिक्कत ना हो तो 1,000 रुपया एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त 1,000 रुपया इनको मिलेगा अगले 3 महीने में। 2 किश्तों में उपलब्ध होगा और लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवा और दिव्यांग, इनको इसका लाभ मिलेगा।
और ये सारा का सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाएगा, ताकि बीच में से कोई भी इन वृद्ध, विधवा, दिव्यांग इनके हक को ना मार सके। और पहले की भी जो कहा गया मनरेगा की बात हो या पीएम किसान की बात हो या वृद्ध, विधवा, दिव्यांग की बात हो, ये सारा का सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जाएगा, ताकि सीधा उनको लाभ मिल सके। We now talk about the 20 crore women Jan Dhan account holders. Women Jan Dhan account holders will be getting an ex gratia amount of 500 rupees per month for the next 3 months, so that they will be able to run the affairs of their household during this period of disruption. So this would benefit 20 crore women who are Jan Dhan account holders. They will get a 500 rupee per month for the next 3 months. मातृशक्ति के लिए, देश की हमारी महिलाओं और बहनों के लिए, जिनका प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता है, ऐसे लगभग 20.5 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले 3 महीने तक 500 रुपया प्रतिमाह उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि इस कठिन समय में, कोरोना वायरस से लड़ने वाली जंग के समय में देश की माताओं और बहनों के साथ हम लोग खड़े हों और उनके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लगभग 500 रुपया प्रतिमाह अगले 3 महीने तक उनके खातों में डाला जाएगा। I'd like to remind the next item is related to Ujjwala, the scheme through which we gave under Prime Minister Modi's leadership gas cylinders to poorest of the poor who couldn't even have the right to have clean cooking medium. So for them, nearly 8 crore of BPL families who were having kitchens full of smoke, Ujjwala scheme benefited them by getting gas cylinders to their houses. Now for those Ujjwala scheme women, so that they don't run short of cooking medium during this period where there is disruption, for the 3 months they will be given free cylinders. For the 3 months where we think because of the disruption there would be problem, they will be provided free cylinders, and this is expected to benefit 8.3 crore BPL families. जहां देश में गरीब परिवार की महिला कभी सपना भी नहीं लेती थी कि उसके पास रसोई गैस का सिलेंडर होगा, धुएं से उसको परेशान होना पड़ता था, लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती थी। पहले 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध आदरणीय मोदी जी ने करवाया, और जब ये हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, तो उनको चिंता मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता बन जाती है। एक और उनके खाते में 3 महीनों तक लगातार 500 रुपये हम डालेंगे। मनरेगा में उनको लाभ मिलेगा, दिहाड़ी बढ़ा दी है। अब रसोई गैस का सिलेंडर के लिए उनको दिक्कत ना हो, तो अगले 3 महीने तक ऐसी 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जिनको उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर मिला था, उनको मुफ्त में अगले 3 महीने तक रसोई गैस के सिलेंडर मिलते रहेंगे। ना उनको अन्न की चिंता होगी, ना गैस की चिंता होगी, और ना ही खाते में पैसा खत्म हो जाए इसकी चिंता होगी, क्योंकि उसमें भी पैसा डालने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो अन्न, धन और गैस, यहां तक की चिंता सारी की सारी मोदी जी ने देखी है, और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने पिछले कल ही घोषणा की है। The next in the PM Garib Kalyan
Yojana with which we are coming with these announcements is the women SHG groups, the self-help groups. This shall have an impact on 7 crore households through 63 lakh SHGs which are there in this country. There are 63 lakh SHGs which benefit 7 crore households. My next announcement is for them, and what exists now is that under the Deen Dayal Yojana National Rural Livelihood Mission, they get up to 10 lakhs collateral-free loans. We now want to double that to 20 lakhs. So collateral-free loan now will be given to them up to 20 lakhs and not 10 lakhs. It's now doubled. This shall immediately benefit all these SHG women and therefore have an impact on the 7 crore households. So money in hand without worries about collateral. अब मैं स्वयं सहायता समूह, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, ऐसे 63 स्वयं सहायता समूह जो इस देश में काम कर रहे हैं और लगभग देश के 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं, इन परिवारों के लिए, या मैं कहूं इस 63 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए, जो NRLM के माध्यम से 10 लाख रुपया मिलता था कि आपको कोलेट्रल नहीं देनी पड़ती, यानी कि अपनी कोई संपत्ति नहीं देनी पड़ती थी, गारंटी नहीं देनी पड़ती थी, कोई कीमती चीज बैंक को नहीं देनी पड़ती थी, वो जो 10 लाख आपको मिलता था उसकी बजाय 20 लाख मिलेगा, ताकि इस कठिन समय में भी आप और काम कर सके, क्योंकि बहुत सारे अवसर नीचे जब पैदा होंगे तो उसके लिए धन का अभाव ना हो, तो ये भी आपके लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और जब हम ये कहते हैं कि 7 करोड़ लोग या 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि उन 7 करोड़ परिवारों के 35 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है। अगर 20 करोड़ बैंक खातों में पैसा डाला जाता है तो 100 करोड़ लोगों तक उसका लाभ मिलता है। अगर 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया जाता है तो 35 से 40 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है। इसलिए ये बहनों तक इसका लाभ मिले और इसको और फल मिले, इसका प्रावधान किया गया है। The next step is about attending to the organized sector under the PM Garib Kalyan Yojana with which we are coming. And under the organized sector, I am announcing 2 different things. One is about their provident fund, and the other is some money in their hand, their own money, but their some withdrawal related remits. So the first announcement for the organized sector under the PM Garib Kalyan Yojana is that Government of India will pay the EPF contribution both of the employer and employee, which is 12% each, 12% for the employer, 12% for the employee, put together 24%. That will be paid for the next 3 months by Government of India, so that nobody suffers because the EPF contribution has lost the continuity, and as a result there could be a lot more difficulties. So 12 plus 12, the 24% contribution which has to go into the EPF account of the employee will be borne by Government of India for the next 3 months. And this is, please, this is important, this is for all those establishments which have up to 100 employees and 90% of whom are such employees earning less than 15,000 rupees a month. I'll repeat that. Government of India will contribute the 12 plus 12, which is the employee and employer contribution, 12 plus 12, leading to 24% total. Government of India will contribute that EPFO of 20% money, the pension provident fund contribution. So the 24% will be paid by Government of India for the next 3 months for those establishments which have up to 100 employees.
and from those 100 employees, 90% of who draw less than 15,000 rupees per month as salary, as wage. That's the first of the announcement for the organized sector. The second of the announcement for the organized sector relates to their own money. That's not government giving money, their own money. But what may benefit 80 lakh employees and incentivize 4 lakh establishments, and this will be enabling people so that without disruption they can continue. The announcement about, the second announcement about their own money is the Provident Fund Scheme regulations will be amended. The EPFO scheme's regulation will be amended because of the pandemic situation which is prevailing, and that being the reason the amendment will happen to allow non-refundable advance of 75% of the amount standing to the credit of a member or 3 months of wages, whichever is lower. I repeat my second announcement for the organized sector. This relates to their own fund which lies in the EPFO. Government of India is ready now to amend the regulation which governs this EPF scheme so that because of the pandemic situation which is prevailing, the regulation will be amended so that workers can draw up to 75% from that fund for their contingency expenditure. This is non-refundable advance which they will be allowed to take 75% or 3 months wages, whichever is the lower. This I expect, this particular announcement I expect will benefit 4.8 crore workers who are registered with the EPF and therefore will be in a position to withdraw the money. संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो नौकरी करने वाले हैं या नौकरी देने वाले हैं, इन दोनों के लिए ही, और वो संस्थान जहां पर 100 से कम एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो 15,000 रुपये से कम महीने का वेतन पाते हैं, ऐसे जहां 90% से कम एम्प्लॉयज़ होंगे जहां पर जो 15,000 से कम वेतन पाते हैं, और जिस संस्थान के 100 से कम एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सरकार मदद करने के लिए आगे आई है कि नौकरी करने वाले का 12% जो हिस्सा है वो भी सरकार डालेगी और नौकरी देने वाले का 12% हिस्सा भी सरकार डालेगी। तो कुल मिलाकर दोनों का शेयर 24% बनता है। ये सरकार अगले 3 महीने तक ये जारी रखेगी और इसमें लगभग संगठित क्षेत्र के 80 लाख से ज़्यादा ऐसे मजदूरों को और 4 लाख से ज़्यादा ऐसी संस्थाओं को लाभ मिल पाएगा। 4 लाख से ज़्यादा संस्थाओं को, 80 लाख से ज़्यादा मजदूरों को उनके अपना 12% जो उन्होंने मजदूर के नाते ईपीएफ कटवाना था वो भी, और जो कंपनी ने जमा कराना था वो भी संस्थान का सरकार देगी। इसके अलावा ईपीएफ स्कीम्स की जो रेगुलेशंस हैं उसमें भी इस महामारी को देखते हुए बदलाव करने का विचार, ताकि जो नॉन रिफंडेबल एडवांस होता था 75% तक, जो उनका क्रेडिट, जो उनका पैसा उसमें था उसके सामने 75% तक, या फिर 3 महीने तक का जो वेतन है उस तक का जो भी कम होगा उसके अनुसार वो निकाल सकें, ऐसा भी हमने निर्णय लिया है। और इससे लगभग 4 करोड़ 80 लाख मजदूरों को फायदा मिलेगा जो ईपीएफ के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी हैं और बेनिफिट भी लेते हैं, और वो अपना पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान उसमें करने को दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने का वेतन
उससे कम या फिर 75% जो क्रेडिट अवेलेबल उनके है उतना वो निकाल सकते हैं। The next one, the last two that I have to announce is one on the construction workers and the next one is the mineral welfare, fund, district mineral fund. On the construction workers, you are aware that by a central government act, there is a welfare fund for the building and other construction workers' welfare. That's a central government act. It has about 31,000 crores of rupees in it and has about 3.5 crore registered workers. We intend to give directions to the state governments to utilize this fund to provide assistance and support to those workers in the construction and building sectors to protect them against any economic disruption. Obviously, because of the way in which we have taken a call to contain the coronavirus with a lockdown so that people stay at home, stay safe, and they don't expose them to the risk, there is a lockdown. As a result, many building and construction workers may be feeling the impact because their work has come to a halt. So, using this welfare fund for building and construction workers, which is as per a central government's act, and utilizing that money which is available in it, which is about 31,000 crores, we want the registered 3.5 crore building and construction workers to benefit from it, and therefore we will be giving directions to the state governments to ensure that that fund can be utilized for helping those who are facing economic disruption as a result of this particular lockdown. राष्ट्र निर्माण में भवन निर्माण हो या बाकी निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और ये भूमिका उनकी बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्र निर्माण में। जो अलग अलग बिल्डिंग्स बनती हैं, सड़कें बनती, बाकी सब तैयारियां होती हैं, इसके लिए बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड ये होता है और इसमें भी लगभग 3.5 करोड़ जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनके लिए लगभग 31,000 करोड़ का फंड उपलब्ध है और राज्य की सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाली जंग में जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुए हैं, इकोनॉमिक डिसरप्शन जो आई है, उसके चलते हुए ये 31,000 करोड़ के फंड का सदुपयोग किया जाए इन गरीब मजदूरों के लिए जो निर्माण कार्य के क्षेत्र में लगे हैं, ताकि इस पैसे का लाभ उनकी ओर हो सके। The last announcement relates to utilizing the district mineral fund. We will request the state governments to utilize the funds which are available under the district mineral fund for supplementing and augmenting all kinds of medical testing activities, screening activities, and also other requirements which are so necessary now to fight the coronavirus and from preventing its spread. We are requesting the state governments to use the district mineral fund which is available at the district level so that medical screening, medical testing, and also providing of health attention will not suffer. So that is my last announcement. I like to repeat that we are now talking about Pradhan Mantri Garib Kalyan welfare related announcements today, wherein I have very clearly upfront stated that we are making an announcement which involves 1,70,000 crores, so that in the coming 3 months people don't remain hungry, food and food related, and money in their hand is required. Therefore, cash transfers through DBT have been announced today. Thank you. आखिरी बिंदु जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को लेकर है,
राज्य की सरकारों के पास ये धन उपलब्ध रहता है और ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग जांच के लिए, स्वास्थ्य जांच के लिए, उपचार के लिए, दवाइयों के लिए इस्तेमाल हो सके, इसके लिए भी इसका उपयोग करना चाहिए ताकि इस महामारी के खिलाफ ये जो जंग हम लड़ रहे हैं इसमें सफलता मिल पाए। और कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो 1,70,000 करोड़ से ज्यादा का आज घोषणा की गई है, इसके माध्यम से अन्नदाता हो, मजदूर हो, गरीब हो, वृद्ध हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, समाज का वो पिछड़ा, वंचित, शोषित, उस सब के लिए आज ये कदम उठाए गए जिसकी चिंता मीडिया ने और सोशल मीडिया पर देश के लोगों ने की थी। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, गरीब को मद्देनजर रखते हुए जो सरकार ने पहले दिन से एनडीए 1 ने काम करना शुरू किया था, बहुत सारी योजनाएं गरीबों के हित में लाई गई। आज इस महामारी के चलते भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स ने जो निर्णय लिए हैं वो गरीबों के हित में पहले लिए, ताकि कोई गरीब देश में भूखा ना हो, किसी के खाता खाली ना हो, किसी की अन्न की थाली खाली ना हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिले, अनाज भी पर्याप्त मिले, ना पैसे की कमी आए, ना खाने की कमी आए। और इन्हीं कदमों को लेकर हर मां बहन के घर परिवार से लेकर उसके बैंक खाते से लेकर उसके कामकाज तक की चिंता की गई। यही प्रयास है कि इस जंग के खिलाफ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। मीडिया ने भी हमारा इसमें सहयोग किया है। एक सकारात्मक वातावरण देश भर में बनाने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इतना डिटेल्ड और स्पष्ट पैकेज। तो यहां पर वित्त मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। गरीबों मजदूरों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है और 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान यहां पर हुआ है। हेल्थ वर्कर्स की अगर बात करें तो 50 लाख रुपए का उनका बीमा होगा। वहीं प्रभावित लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम अन्न धन योजना का भी ऐलान कर दिया गया है और 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो ज्यादा राशन मिलेगा। ये पूरी पीसी का लबोलवाब हम आपको बता रहे हैं। अगले 3 महीनों तक 10 किलो अनाज मिलेगा। वहीं पीएम किसान निधि योजना की पहली किस्त अप्रैल महीने में दी जाएगी। 8.60 करोड़ किसानों को तुरंत 200 रुपए दिए जाएंगे इसी वक्त और दिहाड़ी मजदूरों को 202 रुपए की राशि की सहायता मिलेगी। The Divyang, the widows and the farmers and so on. So we made sure the poorest of the poor who need this supplementary support are reached out first. As things develop, we'll come back. Number 13, please. Ma'am, Timsi from CNBC TV 18. Definitely it's a very comprehensive package impacting the most vulnerable which are facing the hardships today. But where is this money coming from, this 1.70 lakh crore rupees? Is this redeployment of certain existing schemes or this is a fresh money that has been pumped in the economy? What will be the fiscal impact and how do you deal with the hardships of SMEs and MSMEs because they are unable to operate, they are unable to open their business places, be it the shopkeepers who were selling textiles, who were selling plastic goods, etc. because their model of working is that they used to take a personal loan to generate business income and through that business income they used to then take a home loan to have a house. How will they operate? What is in the mind of the government to deal with such vulnerable class as well? मैं इसी के साथ रिलेट जो ऑनलाइन क्वेश्चन है, any relaxation on EMIs, NPAs recognized? We have first come with, as I said, to reach the food to the poorest of poor, to reach money in the hands of those who need it immediately, so that they are not going to be sitting and wondering how they can feed their children and the family immediately. That is why we have even extended the cooking gas facility for total free to those people who may get the grains, but do they have the means to buy the fuel to cook it? So at this moment, we are looking at, from the point of view of Pradhan Mantri Garib Kalyan, to reach out to the poorest of the poor so that they don't
starve for food. They don't have worries about, I don't have money in case I want to buy some small things for the household. So today's measures are very clearly aimed at reaching out with food and money that they need to have in their hands. We will obviously think about the other things. 41, it has been announced, I think it has been made clear, the government is making certain provisions there. Let next question come from 41. Hi ma'am, this is Aftab from Reuters ma'am. Ma'am, just wanted to understand the fiscal impact of this in the coming year and would also want to understand that would this be money, that additional money whatever would be budgeted for next year, would it be borrowed from the market? Well, at this stage, I'm more concerned about reaching out to those who need the help. And as I said today, earlier I had spoken about the compliance requirements of companies and also those taxpayers, so that deadlines are not crossed, legal issues don't crop up because of crossing deadlines. And because it was March end, we had to come up with that as the first announcement. And immediately after that, we came up because to contain the virus, we needed to have. तो यहां पर बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा। 1,70,000 करोड़ का पैकेज गरीबों के लिए रखा गया है। वहीं दिहाड़ी मजदूरों की अगर बात की जाए तो दिहाड़ी मजदूरों को 202 रुपए की तुरंत सहायता राशि दी जाएगी। और ईपीएफ खाते की अगर बात करें तो ईपीएफ खाते में सरकार कर्मचारी और कंपनी दोनों को पैसा देगी। 12-12 रुपए का यहां पर 12% का 12% यहां पर कर्मचारी को, 12% कंपनी को, ताकि दोनों के ऊपर भार ना पड़े। क्या कुछ कहा है राज्य वित्त मंत्री यहां पर अनुराग ठाकुर ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। इस जंग को लड़ने के लिए जो हमारे योद्धा हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के, वो अपनी जान पर खेलकर भी देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यहां तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सबके लिए आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंटलाइन हमारे जो ये योद्धा हैं, इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे। और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है। और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। 1,70,000 करोड़ का होगा। और इसमें अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी गरीब इस कारण से परेशान। तो 1,70,000 करोड़ की वित्तीय सहायता इस बार प्रदान की जाएगी। कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है और क्या कुछ पीसी में निकलकर सामने आया है, क्या कुछ इसका निष्कर्ष है, कितना इंपैक्ट इसका इकोनॉमी पर पड़ेगा, विस्तार से चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, यहां पर पूरी विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब क्या है, क्या कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कितना फायदा यहां पर गरीबों को मिलेगा और आगे की इकोनॉमी पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है इसका। देखिए बिल्कुल गौरांशी, और सबसे आखिर में आपने पूछा इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जवाब भी दिया वित्त मंत्री ने कि पहली प्राथमिकता गरीब तबके को राहत देने की है, लिहाजा ये ऐलान किए गए हैं। आज बड़े ऐलान हुए हैं। जिस तरीके से आर्थिक पैकेज पर निगाहें लगी थी क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है 21 दिन का, लेकिन जिस तरीके से हालात है और गरीब तबका खासा प्रभावित हुआ है इससे, लिहाजा उनको फौरी राहत मिले। केंद्र सरकार ने ये कदम उठाए हैं क्योंकि लगातार ये मांग रही थी, विपक्ष के नेताओं की ओर से भी लगातार हम देख रहे थे एक के बाद एक वो कह रहे कि सरकार यहाँ पर कोई ऐलान क्यों नहीं कर रही है, आर्थिक पैकेज का ऐलान कब होगा, इसको लेकर सरकार से जवाब। प्रधानमंत्री ने जब आज को संबोधित किया था तब ये बातें कही थी कि इकोनॉमी जो टास्क फोर्स है वो गठन किया है, वो कुछ दिनों में इसका फैसला कर लेगी। आज वो फैसला सामने आ गया। 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ये ऐलान हुआ है जो अलग अलग सेक्टर्स को जाएगा। खास बात यह कि इस पे
चावल है और 1 किलो दाल 3 महीने तक अगले 3 महीने तक दिया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के तहत, चाहे मनरेगा की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और जो महिलाएं हैं खासतौर से जनधन से जुड़ी हुई, उनको राहत दी गई है। ये सीधे तौर पर उनको उनके बैंक खाते में रकम जाएगी, जो अलग अलग, अगर देखें आप जन खाते की बात करें तो 500 रुपए की रकम महिलाओं के खाते में। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे मजदूर हैं और उनको भी राहत दी गई है। तो अलग अलग पैकेज दिया गया है। इसके जरिए सरकार ये उम्मीद कर रही है कि वो जो लॉकडाउन से प्रभावित वर्ग है, गरीब तबका है, जो अपनी रोज की मजदूरी पर निर्भर था, उसको राहत मिलेगी, कैश उसके हाथ में आएगा और वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को उस पर खर्च कर पाएगा, ये सरकार को लगता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसका नाम दिया गया है और इसीलिए यहाँ पर राहत का एक पैकेज बड़ा सरकार इसको मान रही है। दूसरा जो ईपीएफ की बात की गई है, यानी ऐसे जो संस्थान है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिनमें 100 से कम कर्मचारी काम करते हों और 15,000 तक की सैलरी हो, उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। ईपीएफ अगर उनका जाता है तो सरकार खुद ईपीएफ भरेगी, यानी एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी 12% जो उनको रकम उसमें देनी होती है। इसके अलावा 3 महीने की उनको वो दी गई है कि 3 महीने की रकम की निकासी वो कर सकते हैं वेतन के बराबर अपने ईपीएफ अकाउंट से, या फिर 75% जो भी कम हो, उस हिसाब से ये व्यवस्था की गई है। ये तमाम प्रावधान सरकार की ओर से किए गए हैं ऐसे वक्त जब यहाँ पर जो हालात हैं लॉकडाउन के चलते काफी चिंताजनक ये स्थितियां गरीब वर्ग के लिए जताई जा रही थी। खासतौर से उनका पेट कैसे भरेगा उसकी चिंता ना करें, सरकार ये आश्वासन देती नजर आई है। होम डिलीवरी की बात दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि फोन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं, जो लोगों को राशन की जरूरत है वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो तमाम चीजें कोशिश की जा रही है और आज सरकार ने, केंद्र सरकार ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है, आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसके जरिए वो चाह रही है कि वो गरीब तबका जो लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है उसको राहत मिलता है। फौरी राहत के तौर पर 1,70,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज अनाउंस किया गया है। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है ये। इसमें किसान भी शामिल हैं, जो गरीब तबका है, जो दिहाड़ी की मजदूरी करता है, जो मनरेगा के तहत काम करता है, जो दिव्यांग है, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी पेंशन मिलती है, उन तमाम चीजों को समाहित किया गया है। हालांकि बड़े सेक्टर की बात करें, जो सेक्टर थे मझोले सेक्टर और जो छोटे उद्योग थे उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके ईपीएफ को लेकर एड्रेस किया है सरकार ने। लेकिन ऐसा जो उम्मीद कर रहे थे कि डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स, जो डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, उनको कैश मिलना चाहिए, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। तो ये जरूर है कि ये बड़ी राहत मानी जा रही है गरीब तबके के लिए। उनके अन्न की व्यवस्था की गई है और उनकी रकम की व्यवस्था की गई है। हेल्थ वर्कर्स के लिए भी यहाँ पर 50 लाख का बीमा किया गया है, क्योंकि इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी पर ध्यान देने की है तो वो हेल्थ वर्कर्स पर है, जो दिन रात लगातार कोरोना से जंग में अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ऐसे में बड़ा ऐलान और अच्छा ऐलान कहा जाएगा इसको केंद्र सरकार का। देखिए बिल्कुल, और कोरोना फाइटर्स जो लगे हुए हैं हमारे, चाहे डॉक्टर्स हों या फिर जो पैरा मेडिकल फोर्स हैं, इसके अलावा वॉलंटियर्स हैं, इसके अलावा अलग अलग जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, उनकी बात करें तो ये उनको राहत देगा ये कदम सरकार का, उनके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था करना और ये भरोसा दिलाना कि वो जो अपना काम निभा रहे हैं उनके साथ सरकार खड़ी है। यानी उनके परिवार को एक बड़ा मैसेज ये देता है ये कदम, और इसीलिए इसकी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। यानी कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है और जिस तरीके से इस जंग को जीतने के लिए जो लोग इसमें लगे हुए हैं, डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना वो सरकार का काम था। लिहाजा उसने ये उनके हित के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ऐलान कर चुके हैं कि 15,000 करोड़ रुपए की हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ये जरूर है कि इस पर निगाह रहेगी, अलग से व्यवस्था होगी या इसी में शामिल रहेगी। तो निश्चित तौर पर ये जरूर है कि जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है और उसमें जो बड़े कदमों की जरूरत महसूस की जा रही थी, केंद्र सरकार ने आज बड़े राहत पैकेज के तौर पर, आर्थिक पैकेज के तौर पर उन कदमों का ऐलान कर दिया है और देश को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वो मुश्किल के वक्त में किसी भी गरीब परिवार को भूखा नहीं सोने देगी या फिर उनकी मदद के लिए तैयार है, उनको पैसे की कमी नहीं होने देगी। पूरी तौर पर दिखाई देती है करने को लेकर निश्चित व्यवस्था के तौर पर उनको जल्द से जल्द उपलब्ध करने वाली है।
बिल्कुल प्रदीप जी, और वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा भी कि अगले 3 महीने तक कोई भूखा ना रहे और साथ ही साथ सबके हाथ में पैसा हो। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, उसमें एक पत्रकार ने सवाल भी किया था कि ये जो पूरा बजट है 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो वित्त मंत्री ने कुछ साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है इस वक्त हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़े। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि देखिए छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 1,70,000 करोड़ का पैकेज अगर उसका ऐलान किया गया है तो सरकार की तो जवाबदेही है ना कि वो इसके बारे में बताए कि इतना पैसा आया कहां से। देखिए, सरकार ने व्यवस्था की है, अलग अलग मद में कटौती की जाएगी। निश्चित तौर पर अब जो पहली प्राथमिकता है वो राहत देने की है। ये जरूर है, अब चूंकि बजट बनता है और हमने देखा है संसद में जो बजट पारित हुआ है, अलग अलग फंड रिलीज होते हैं, अलग अलग मंत्रालय को जाते हैं। अब निश्चित तौर पर ये रकम की व्यवस्था करनी होगी और ऐसे में कुछ जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके फंड में कटौती हो सकती है। तो ये जरूर है कि सरकार को पैसे की व्यवस्था करनी होगी और उसके जरिए इस जो आज योजना ऐलान की गई है, यानी आर्थिक पैकेज की, जो कोरोना वायरस एक बड़ी बीमारी के तौर पर अचानक उभर कर आ गया। आपको जिस तरीके से दिखाई देता है कि एक वैकल्पिक फंड भी होता है सरकार के पास और उसमें उस रकम को वो समाहित करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये जरूर है कि वित्त मंत्री ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है। केवल उन्होंने इतना कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता गरीब लोगों को और जो जिस वर्ग के लिए घोषणाएं हुई है उनको राहत देने की है। लिहाजा सरकार अब इस पर अमल करेगी और उन सवालों से वो जरूर किनारा करेगी जो विवाद पैदा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी राहत देने की बात है और गरीब तबके से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने जो देशवासियों को जब संबोधित कर रहे थे वो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार उनके साथ है। लिहाजा सरकार ने आज बड़े कदमों का ऐलान किया है और निश्चित तौर पर इसके असर का इंतजार करना होगा, क्योंकि जिन 3 महीनों के लिए सरकार ने व्यवस्था की है वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। और निश्चित तौर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का ये कदम काफी प्रभावशाली माना जाएगा। ऐसे वक्त जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन के हालात हैं और लोग जो हर दिन अपनी मजदूरी करते थे और अपने घर को चलाते थे, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है कि अब उनको उसकी चिंता नहीं करनी होगी। बिल्कुल अभूतपूर्ण कदम है आप सरकार का। प्रदीप जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक और खड़ी होती है कि 80 करोड़ का राशन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से अगले 3 महीने तक। अगर हम सप्लाई की बात करें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी पूरी तरीके से सप्लाई आम दिन की नहीं पहुंच पा रही है। हरियाणा से हम सुबह से अपने रिपोर्टर से जुड़े हुए हो, बता रहे हैं कि अभी तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, दिल्ली में गाड़ी खड़ी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब रोजमर्रा की आपूर्ति अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो 80 करोड़ का जो राशन वितरित करना है, इसके लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा? देखिए, कोई रोड मैप तो बनाना ही पड़ेगा, राज्य सरकारों से सहयोग लिया जाएगा और ये संकेत भी मिले हैं वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो फंड होता है वो भी गरीबों को राहत देने के लिए खर्च कर सकती हैं, ये सुझाव भी दिया गया है। तो ये जरूर है कि जैसे कि लोगों को राहत देने की बात है, निश्चित तौर पर सरकार फंड जारी करती है, राज्य सरकारों को वो मुहैया होगा और उसके बाद वो इंप्लीमेंट होगा। तो ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी जवाबदेही बनेगी, राज्य सरकारें कितनी बेहतर तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगी, कितनी जल्दी से जल्दी गरीब लोगों को राहत दे पाएंगे। लेकिन चाहे वो डायरेक्ट जो बेनिफिट होना है खाते के जरिए, जनधन योजना के जरिए, उसमें केंद्र सरकार सीधा पैसा डालेगी। उज्ज्वल योजना चल रही है, गैस सिलेंडर अगले 3 महीने तक फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई सीधी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार से जुड़ी हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा सरकार को लगता है। राशन की व्यवस्था करने की बात जहां तक है, निश्चित तौर पर अगर देखिए आप गेहूं की बात हो रही है तो सोशल मीडिया में हम सबसे ज्यादा चर्चा देख रहे हैं कि ऐसे वक्त आटे की जरूरत है, क्योंकि गेहूं चक्कियां वहां तक पिसवाने के लिए गरीब तबका कैसे जाएगा, ये भी बड़े सवाल हैं। तो अब देखना होगा इसको लेकर क्या सरकार राहत देगी। लेकिन ये बड़ी राहत है, बड़ा आर्थिक पैकेज है जो सरकार की ओर से आज अनाउंस किया गया है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसे वक्त गरीब तबके को बड़ी राहत दी है जब वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अलग अलग महसूस कर रहा था और उसकी चिंताएं बढ़ी हुई थी कि आखिर उसका घर कैसे चलेगा। अब उसके लिए उसकी व्यवस्था हो गई है, बड़ी राहत उसको मिली है। बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी आपने, यहाँ पर एक बड़ी राहत जरूर दी गई है सरकार की तरफ से। 1,70,000 करोड़ का पैकेज यहाँ पर उसका ऐलान किया गया है। इस वक्त देश को इसकी खासा जरूरत थी और सरकार ने साबित किया है कि जब बात यहाँ पर डिजास्टर की आती है, आपदा की आती है, तो उस वक्त सरकार आम जनता के साथ में खड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए प्रदीप जी।
तो यहां पर गरीबों मजदूरों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज का जो प्रावधान है यहां पर सरकार के द्वारा किया गया है। कोरोना के खिलाफ पूरा देश इस वक्त जंग लड़ रहा है। ऐसे में विपक्ष, आम जनता सभी मांग कर रहे थे कि जो 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है उसमें आम जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कुछ सरकार करती है। और अब कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो गरीब तबका है, जो किसान है, हेल्थ वर्कर्स हैं, ये जरूर राहत की सांस लेंगे क्योंकि इनको पता है कि सरकार ने इनके लिए इंतजाम कर दिया है।